Hey guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 30th of May 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. आज हमारे पास near about 5 articles हैं from the Hindu, 2 articles are there from Indian Express and 1 article from PIB. In total we'll be seeing near about 8 articles. Front page of Hindu says GDP growth slows to a 11-year low of 4.2%. Quarter 4 slumps to 3.1%. So according to the provisional estimates of the NSO, that is the National Statistical Office, which functions under the Ministry of Statistical and Program Implementation, the GDP growth of India during the 2019-20 period slowed down to near about 4.2%, and this is the biggest slump in the last 11 years seen by the Indian economy. जो 2019-20 के बजट एस्टिमेट्स थे उनके हिसाब से GDP growth of the 1920 was pegged at around 8.5%. NSO के एस्टिमेट्स ने इसको फर्दर पुश कर दिया था to near about 5%, but the provisional estimates released by the NSO now are still far lower than the last estimate done by the NSO, and it is near about 4.2%. It also says that 3 major components of demand have fallen, including the consumption, investments and exports. तो ये तीनों चीजें गिर गई हैं और जो लास्ट की दो हैं, that is investment and exports, they are at present in the negative territory. Along with this, center's gross tax revenues also have contracted by 3.4%. इसका मतलब जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की इनकम है वाया टैक्सेस, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है by 3.4% in 1920, and the fiscal deficit has increased to 4.6%, जो revised estimate से again बहुत ऊपर है, which was near about 3.8%. यहाँ पे हमने सिर्फ डेटा की बात करी है, लेकिन इसके implications क्या हैं, nominal GDP क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में. So now let us move on to our next article on the editorial page. Anchoring ties with Canberra the virtual way. इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट स्केड्यूल्ड है ऑन द 4th of June, and this is first of its kind bilateral virtual summit done by India. इसके पहले इंडिया ने वर्चुअल समिट करी थी, but that was multilateral in nature and it was done with the SAARC nations. ये इंडिया की first ever bilateral virtual summit होगी and this will be held between India and Australia. अगर आप ट्रेस करने की कोशिश करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब से इंडिया ने वहां पे ऑफिशियल कॉन्सुलेट ओपन किया है, उसके बाद से लेकर राजीव गांधी के टाइम तक रिलेशंस काफी म्यूटेड थे इन ऑल द एस्पेक्ट्स, whether be it trade, strategic or people to people ties. देन उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में सबसे लोएस्ट पॉइंट आया इन दी 1998, जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे और ऑस्ट्रेलिया ने उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था. आफ्टर दिस लोएस्ट पॉइंट इन दी 1998 रिलेशंस में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, and it was only in the 2014 when a visit was made by the Prime Minister of India to the Australia, and that was the first ever visit of the Indian Prime Minister to Australia in the past 28 years. मतलब राजीव गांधी के टाइम के बाद से पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर अगर ऑस्ट्रेलिया गया था तो वो 2014 में गया था. And we saw that almost all the Australia's recent prime ministers have visited India since then. तो कोई भी bilateral relations स्टडी करने से पहले हमें दो चीजें असेस करनी पड़ती हैं, which are the potential areas of both the countries and the grey areas of both the countries. तो जब ये पोटेंशियल एरियाज ग्रे एरियाज को फिल करने लगते हैं तो कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड दिस एंगेजमेंट विद द ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर डीप इन नेचर. तो अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पोटेंशियल एरियाज और ग्रे एरियाज की बात करें, सो द पोटेंशियल एरियाज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया वुड बी दैट दे हैव गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर सिस्टम, they have good dairy sector, they have huge mineral deposits and they are short on the workforce. ये एक gray area है and these all are the positive areas of the Australia. And another gray area of the Australia is the security. तो ऑस्ट्रेलिया को अब चाइना के कारण थोड़ा सा थ्रेट फील होने लगा है in the Indo-Pacific region, and so it is trying to align itself into the Quad. So Quad is a quadrilateral grouping between the 4 countries which are of strategic importance in the Indo-Pacific region, and it includes India, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. तो ये 4 कंट्री की एक ग्रुपिंग है विच इज नेम्ड एज क्वाड, और ये इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर इन द मेजर प्लेयर इज इंडिया, एज यूएस ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कैन नॉट प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड द रिमेनिंग 2 कंट्रीज आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर देयर सिक्योरिटी नीड्स. अब अगर हम इंडिया के ग्रे एरियाज की बात करें तो ये सारे इंडिया के ग्रे एरियाज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं एक्सेप्ट द डेयरी सेक्टर. हमने आरसीईपी के आर्टिकल में ये बात देखी थी
थी क्लियरली कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड डेयरी सेक्टर को इंडिया में पुश करना चाहते हैं, और उसके कारण इंडिया के डेयरी सेक्टर ने बहुत इंटेंसिव लॉबिंग करी थी अगेंस्ट द इंडियाज डिसीजन टू ज्वाइन द आरसीईपी। तो डेयरी सेक्टर इंडिया का एक ग्रे एरिया नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द थ्री आर डेफिनेटली ग्रे एरियाज, और यही वो एरियाज हैं जहां से आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टाइज स्ट्रांग होते हुए दिखते हैं। बिकॉज एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, विच नॉट ओनली बूस्ट द एजुकेशन सेक्टर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मच नीडेड वर्क फोर्स इन ऑस्ट्रेलिया, जो वहां का ग्रे एरिया है। सिमिलरली अगर हम मिनरल डिपॉजिट्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को जो सबसे ज्यादा मिनरल्स एक्सपोर्ट करता है, दे इंक्लूड कोल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, जिसमें से यूरेनियम इज वन मिनरल विच इज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। और रिसेंटली 2014 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील साइन करी थी, जिसके थ्रू डिस्पाइट इंडिया बीइंग द मेंबर ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ऑस्ट्रेलिया हैज गिवन इट्स कंसेंट टू एक्सपोर्ट यूरेनियम टू इंडिया फॉर सिविल यूजेस। तो ये क्लियरली सिग्निफाई करता है एनहांस्ड वार्मथ बिटवीन बोथ द नेशंस, दैट इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम स्ट्रेटेजिक और डिफेंस सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को फर्दर एक्सप्लोर करने का ट्राई करें तो हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे क्वाड के अलावा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है, विच विल डेफिनेटली एनहांस द डिफेंस कोऑपरेशन एंड विल ईज द कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ये वैसा ही एग्रीमेंट है जो इंडिया ने यूएस के साथ साइन किया हुआ है, which we all know as the LIMOA, that is the Logistics Exchange Memorandum of Agreement. So joint military exercise of India and Australia is known as AUS-INDEX, and it is the largest bilateral naval exercise between both the countries. Then Australia को Malabar exercise में भी permanent include कर लिया गया है। इसके पहले जापान को किया था और अब ऑस्ट्रेलिया को कर लिया है। So Malabar exercise is again one of the most strategically significant exercise which was trilateral in nature till now, involving United States, Japan and India. And originally it was only between India and the United States. So the 2+2 format between Australia and India can also be elevated in the coming times from the secretary level to the foreign or the defense minister level, जैसे कि इंडिया यूएस और इंडिया जापान में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सो नेक्स्ट इज डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ इंडिया 2+2 फॉर्मेट को एलिवेट करेगा टू द फॉरेन मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर लेवल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस हैव बिकम सिग्निफिकेंट एंड इंडिया हैज स्टार्टेड टू सी ऑस्ट्रेलिया एज अ की प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया की जो सागर पॉलिसी है, दैट इज द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ for all in the region, wherein India targets the IORA, that is the Indian Ocean Rim Association, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोएक्टिव रोल देखने को मिल सकता है along with India. So for now you can give quick read to this article और ये इंफॉर्मेशन आप जॉट डाउन कर सकते हैं, which definitely we will refine further through our Cracked Nets initiative. Moving on to our next article, Belated but welcome. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली इंटरवीन करा टू एलिविएट द कंसर्न्स एंड डिस्ट्रेस फेस्ड बाय द माइग्रेंट्स एंड लेबर्स अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, एंड दिस इंटरवेंशन वाज suo motu in nature, which means that the initiative was taken by the Supreme Court itself. सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज करा कि कुछ लैप्सेस हैं, कुछ लूप होल्स हैं इन द पॉलिसीज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स इन डीलिंग विद द माइग्रेंट्स एंड लेबर इशू ड्यूरिंग द लॉकडाउन, and it directed the state governments and the central government to provide free food, shelter and travel to all the stranded migrants. So though there is some acknowledgement and appreciation of this Supreme Court's intervention, but there is larger criticism around it, and the criticism relates to the ADM Jabalpur case, because this case, according to the legal experts, was the biggest ever mistake done by the Supreme Court in its history in India. So ADM Jabalpur case, which is also known as the habeas corpus case, was the case of 1976, that is during the emergency, wherein the Supreme Court restricted the enforcement of the fundamental rights, and it upheld the constitutional validity of the MISA Act, that is the Maintenance of Internal Security Act, जिसको implement करते हुए emergency को function किया जा रहा था. So today legal experts are finding some sort of similarities between the ADM Jabalpur case with that of the present situation, that is the lockdown, जब Supreme Court act नहीं कर रहा है and it is abdicating its duty to protect the fundamental rights of the million of its citizens who are repeatedly knocking its door for relief.
So this decision of Supreme Court is actually too late and too little. तो ये जजमेंट में तो कुछ खास है नहीं है, हम पहले भी देख चुके हैं. The only important thing out here is the ADM जबलपुर case, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए, because you can use this case at many places wherever you find discrepancies with respect to the enforcement of the fundamental rights and especially Article 21. So now let us move on to our next article. Nascent Arabian Sea cyclone may delay monsoon arrival. So there are some signs of the development of a cyclone in the Arabian Sea which IMD is saying could affect the arrival of the monsoons in India. तो इस आर्टिकल से बस आपको ये समझना है from the geographical point of view that what are the factors that may affect the arrival of the cyclone or what are the factors that are responsible for the early arrival of the monsoon or for the delay in the monsoon. So one of those factors is cyclone. अगर साइक्लोन अरेबियन सी में डेवलप होता है एंड इफ इट इज इंटेंस इन नेचर, मतलब अगर वो एक सुपर साइक्लोन है जैसे कि अम्फान था या वो एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सच इंटेंस साइक्लोनिक स्टॉर्म्स कैन डेफिनेटली डिले द अराइवल ऑफ मॉनसून्स और कैन इवन मेक द मॉनसून्स लेस इफेक्टिव. रीजन इज ऑब्वियस हियर दैट सच साइक्लोन्स बीइंग इंटेंस इन नेचर आर एबल टू सक इन large amount of moisture which otherwise could have been used by the monsoon winds. The first reason is moisture out here, that such low pressure systems will definitely suck in the available moisture, depriving the monsoon winds of the same. The second reason out here is that the landfall of such cyclones can definitely lower the pressure systems or affect the pressure systems. तो pressure systems पे affect अगर पड़ेगा तो definitely जो driving force है वो weaken हो जाएगा. हमें पता है monsoon winds इंडिया में enter करते हैं because Indian mainland पे especially across the ITCZ एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप्ड रहता है एंड इन द इंडियन ओशियन हाई प्रेशर सिस्टम रहता है स्पेशली एट द मैस्करीन्स हाई एंड दिस प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव्स द मॉनसून विंड्स टुवर्ड्स द लैंड. नाउ इफ द साइक्लोन मेक्स द लैंडफॉल अहेड ऑफ द मॉनसून विंड्स देन इट कैन डेफिनेटली लोअर दिस लोअर प्रेशर सिस्टम एंड इफ दिस लोअर प्रेशर सिस्टम गेट्स वीकन एट द लैंड देन द प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइविंग द मॉनसून विंड्स टुवर्ड्स द लैंड विल नॉट वर्क विद द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इट वुड हैव वर्कड अदरवाइज. ये दो मेजर रीजंस हैं जिसके कारण मॉनसून अराइवल जो है वो डिले हो सकता है. बट साइक्लोनिक स्टॉर्म्स अरेबियन सी में गुड न्यूज भी है फॉर द मॉनसून्स only if they are not of intense nature. अगर वो अपने इनिशियल 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, that is if they are low pressure systems, they are depressions और they are deep depressions. अगर इतनी इंटेंसिटी है साइक्लोन की सिर्फ तो वो मॉनसून विंड्स को फर्दर एनर्जाइज करेंगे एंड इट कैन लीड टू द अर्ली एंड मोर इफेक्टिव मॉनसून अराइवल इन इंडिया. तो इस आर्टिकल से आपको बस यही कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन करनी है विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लोन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इंडियन मॉनसून. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल. Telecom regulator moots national numbering plan. So TRAI, that is the Telecom Regulatory Authority of India, has come out with a proposal or has recommended to switch the mobile numbers to 11 digits from 10 digits at present. और इसके साथ ट्राई ने ये भी प्रपोज करा है कि जो मोबाइल नंबर सरेंडर हो चुके हैं बाय द ऑपरेटर्स हु हैव शट देयर शॉप्स कैन आल्सो बी रीएलोकेटेड. दीज प्रपोजल्स एंड रिकमेंडेशंस हैव बीन मेड बिकॉज देयर हैज बीन मैसिव ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कनेक्शंस स्पेशली इन द मोबाइल सेगमेंट. तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अब 10 डिजिट के नंबर्स बचे नहीं है फर्दर एलोकेट करने के लिए और इसमें गवर्नमेंट को परेशानियां आ रही हैं. सो इट इज प्लानिंग टू स्विच नाउ टू द 11 डिजिट मोबाइल नंबर. टेली डेंसिटी इंडिया की जो अभी एट प्रेजेंट है दैट इज नियर अबाउट 87.45%. ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू कैन यूज इट इन योर जीएस पेपर 2 इन द गवर्नेंस सेक्शन. तो 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर एलोकेशन सिस्टम था वो 2003 से इंप्लीमेंट किया गया था और तब ये प्रोजेक्शंस लगाए गए थे कि 2033 तक मतलब 30 सालों तक जरूरत नहीं पड़ेगी कोई नया प्लान लाने की. बट इट इज 2020, सिर्फ 17 साल हुए हैं अभी और हमें एक नए प्लान की जरूरत है बिकॉज वी हैव इंक्रीज्ड टेली डेंसिटी एक्सेप्शनली. तो ये एक बहुत छोटा सा आर्टिकल था जहां से आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. द फर्स्ट इज द फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेली डेंसिटी ऑफ इंडिया एंड सेकंड अबाउट द नेशनल नंबरिंग प्लान ऑफ द ट्राई फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस आर्टिकल बीइंग द लास्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, नाउ वी शैल बी सीइंग 2 आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. हाउ टू रीड स्लोइंग ग्रोथ. तो हमने हिंदू के फ्रंट पेज पे देखा था कि इंडिया की जो जीडीपी है उसने हाईएस्ट स्लम्प विटनेस करा है इन द लास्ट 11 इयर्स एंड द प्रोविजनल एस्टिमेट्स पुट इट अराउंड 4.2%. जीडीपी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स में. द फर्स्ट इज द नॉमिनल जीडीपी एंड सेकंड इज द रियल जीडीपी.
So if we talk about the nominal GDP first, then we will see that the nominal GDP is inflation unadjusted. मतलब इसमें inflation adjust नहीं किया जाता है. It is calculated at the current prices. Whereas real GDP में inflation को adjust किया जाता है and it is calculated at the constant prices. तो GDP series को अभी revise किया था और base year shift किया था to the 2011 एंड 12. इंडिया में जो नॉमिनल जीडीपी है वो पिछले काफी सालों से डबल डिजिट ग्रोथ शो कर रही थी, बट जनवरी में जब थर्ड क्वार्टर के एस्टिमेट्स आए थे अगेन बाय द एनएसओ, तो उसने नॉमिनल जीडीपी को पहली बार इतने सालों में सिंगल डिजिट में शो किया था. और अभी जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स आए हैं दे अगेन हैव पुट द नॉमिनल जीडीपी नियर अबाउट 7.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020. नॉमिनल जीडीपी का इतना ज्यादा गिरना, दैट इज उसका सिंगल डिजिट में आ जाना, एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी इज एक्चुअली द बेस ऑफ ऑल द फिस्कल कैलकुलेशंस. सो नॉमिनल जीडीपी tells us that how much increase is there in the income resulting from rise in both the production and the prices. But whereas real GDP में बस हमें यही पता चलता है कि actual physical terms में कितनी growth देखी गई है. तो nominal GDP का single digit में आने का impact अगर हम देखना चाहें on the corporates and on the government, for our better understanding that on corporates it will be reduced capacity to pay. कि जब nominal GDP इंडिया की डबल डिजिट में थी, टर्नओवर कंपनीज का डबल होता था 4 से 5 सालों में. अब जब ये सिंगल डिजिट में आ गई है तो यही डबलिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा टू 9 to 10 years. दिस मीन्स दैट कंपनीज विल बी एबल टू फेच लेस प्रॉफिट देन दे वर एबल टू अर्न अर्लियर व्हेन द नॉमिनल जीडीपी वाज इन द डबल डिजिट्स. तो अगर कंपनीज अपना टर्नओवर नहीं इंक्रीज कर पाएंगी तो डेफिनेटली उनकी पेइंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होगी. अब अगर हम नॉमिनल जीडीपी का इंपैक्ट गवर्नमेंट पे देखना चाहें तो फर्स्ट इंपैक्ट वुड बी कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट की बोरोइंग इंक्रीज होंगी एज इट विल have to spend more because investment now from the private end cannot be expected much. Second जो impact government पे आएगा that will be its unmanageable debt to GDP ratio. तो गवर्नमेंट अगर ज्यादा बोरो करेगी तो डेफिनेटली डेट टू जीडीपी रेशियो भी इंक्रीज होगा एंड इट कैन बिकम अनमैनेजेबल इन फ्यूचर. The third impact would be that there will be less of jobs. जॉब क्रिएशन पे एडवर्स इफेक्ट कैसे पड़ेगा ये शायद अभी तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स पे नहीं कर पा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स अर्न नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जॉब क्रिएशन की ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होती है. सो अल्टीमेटली देयर विल बी श्रिंक इन द जॉब सेक्टर and eventual rise in the unemployment in the country. So ये एक brief analysis था about the provisional estimates released by the NSO, which says that India's GDP has slumped to its lowest level in 11 years to 4.2%. Now let us move on to our next article. 7.75% RBI bonds discontinued. Cause and effect. तो एक आरबीआई का बॉन्ड था 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स, जो कि 2018 में ओपन किया गया था सब्सक्रिप्शन के लिए. उसको रिसेंटली आरबीआई ने डिसकंटिन्यू कर दिया है. So each bond was of ₹1000 and there was no maximum limit for the investment. 7 years का लॉक इन पीरियड था इस बॉन्ड में एंड 60 प्लस एज वाले इन्वेस्टर्स को अलाउड था कि वो इस बॉन्ड का प्री मैच्योर एनकैशमेंट करा सकते हैं. और ये बॉन्ड टैक्सेबल था अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, बट द टैक्स वाज वेरी मार्जिनल. ये बॉन्ड अभी बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया था बिकॉज इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज खत्म हो गए थे. तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज गवर्नमेंट वाज ऑफरिंग 7.75 इंटरेस्ट रेट, विच वाज वेरी गुड व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द प्रेजेंट सिचुएशन. तो बेसिक रीजन इस बॉन्ड को डिसकंटिन्यू करने का यही है कि लिक्विडिटी फर्दर ट्रैप ना हो, बिकॉज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अगर इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अभी इंडियन इकोनॉमी को वो सफर करेगी, बिकॉज देन दीज इंडिविजुअल्स विल नॉट टेक रिस्क एंड इन्वेस्ट इन दी अदर सेक्टर्स. और जैसे कि हमने देखा कि इस बॉन्ड में कोई अपर लिमिट नहीं है और अभी मार्केट्स इतने ज्यादा गिरे हैं, तो देयर वाज अ सडन रश टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स व्हिच वाज अगेंस्ट द आरबीआई's ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट. नाउ लेट अस सी आवर लास्ट आर्टिकल फ्रॉम द पीआईबी. फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल्स ट्रेनिंग लॉन्च्ड ऑन नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल इन पार्टनरशिप विद टीसीएस. इस आर्टिकल से आपको बस एक चीज पढ़नी है, दैट इज अबाउट द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं आपके सामने, सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू इजीली एलिमिनेट एंड चूज द करेक्ट वन. सो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. It provides variety of employment related services and
anyone in India above 14 years of age can register himself or herself on the National Career Service Project or the National Career Service portal. So this portal has integrated near about 1000 employment exchanges, including 200 model career centers across the country. So this was a brief about the National Career Service portal जो आपको पता होना चाहिए. And this being the last article of the day, guys, we shall wrap up the news notes of the day now. Post your suggestions, queries, doubts in the comment section below. Keep learning, guys. Thank you.